Yeah, so uh, this is a chapter called marginal productivity. Okay, so marginal productivity theory of distributions. Fine. So now you see, what are the syllabus which contains this chapter? So we have the demand for the factor of production. We are going to study supply of the factor of the production. So we know that what are the different factor of production we have. So we are having different factor of production. So we are having is your land, labor, then we are having is your capital, and then entrepreneurship. So these are the factor of production we are having. So we go and talk about the marginal productivity theory. Fine. So meaning of the marginal product, assumptions of the theory, and these are the syllabus we have. Now we are going to start this chapter actually. So let us come and we'll start with the important definitions. Fine. So we have the derived demand. It is the definition as the demand for a factor which is derived from the demand for a commodity which the factor helps to produce marginal revenue product. So it refers to the addition to total revenue resulting from the employment of one more unit. So that is the definition of the marginal we have. What is the definition of the marginal? So we know that the definition of the marginal is your that whatever the difference of the output is there with the change in the one unit of production. Fine. Now we talk about the introduction. Fine. We have the early economics had divided economic theory into two parts. We have is your theory of value. Theory of value, it deals with the pricing of the commodity, and we have the theory of distribution, it deals with the pricing of the factor of production. So later on, the theory of the general equilibrium. Fine. So later on, the theory of the general equilibrium analysis merged these two theories as a part of the one pricing problem in which both sets of prices are simultaneously determined. Most modern economics insist that the theory of the factor pricing is a part of the general equilibrium analysis. Now, we talk about the theory of distribution or the theory of factor pricing. So, जो भी हमारा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, एंटरप्रेन्योरशिप है, उसकी प्राइसिंग हम कैसे करेंगे and how our total revenue will be distributed among them. So is further divided into the micro and macro theories. So we have the economic theory, we have the theory of the value, and we have is your theory of distributions. So theory of distributions we have to see from different angle. We have to see from the micro theory angle. We have to see from the macroeconomics angle. Fine. Now the micro theory of distribution deals with the determination of the price of each factor of production. Macro theory of the distribution deals with the division of the national income among different factors of the production. This chapter deals with the micro theory of the distribution and studies in depth the marginal productivity theory of distributions. Fine. So now we see what is happening. I'll give you an example. So there is a company called Foxconn, and it is a company from Taiwan, and they manufacture mobiles for a lot of vendors, lot of companies.
mainly for Apple. And they manufacture for so many companies, but they manufacture mainly for Apple. Now they were having two plants in China, and each plant were having employee of 50,000 employee. Now, after few years of operation in one plant, they have fully automatized, means they have started the robotics production. So all the 50,000 employees were laid off. Only few people, those who were having the technical knowledge, the people, those who were working as a management level, they were just working, but at manufacturing level, all of the employees was removed. Now, the Foxconn entered into India also for manufacturing of the Apple phone. And then Xiaomi, which we call as MI, Samsung, they have started the factory in India as per the Make in India plan of the government of India. Now, as the technology has developed the worldwide, that these companies can enter into India and they can have a complete robotics manufacturing system, and they can work with very less employees. But what the government of India said, that our prime focus of starting these industries are increasing of the employment. So what they put is that they put the condition is that you use the technology, but you also use the maximum workforce of the labor in India, and then only you can start your manufacturing in India. Now you see, had they brought all the robotics manufacturing, what would have been happen at macro level, कि उस कंपनी के पास जो रेवेन्यू आता वो कुछ तो लैंड के लिए चला जाता, कुछ कैपिटल के लिए चला जाता, कुछ इंट्रप्रेन्योर्स के लिए चला जाता, और लेबर के हिस्से में कुछ भी नहीं आता या बहुत कम आता, क्योंकि मोस्ट ऑफ द चार्जेस जो है वो टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर्स, रोबोटिक्स, उनके मेंटेनेंस, परचेजिंग और उसके कॉस्टिंग में लग जाता. तो मैक्रो लेवल पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जो थ्योरी है, थ्योरी ऑफ जो डिस्ट्रीब्यूशन है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस तरीके का प्लान बनाया कि आप टेक्नोलॉजी को एक मिनिमम एक्सटेंट तक यूज करें और आप ज़्यादा से ज़्यादा वर्कफोर्स यूज करें, सो दैट कि जो पैसा टेक्नोलॉजी के लिए जाएगा वो पैसा रूट होकर जो है वो मैक्रो लेवल पे वर्क लेबर्स को मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा. अब देखिए, गवर्नमेंट मनरेगा प्लान चला रही है. अब मनरेगा प्लान में कमिटमेंट है गवर्नमेंट की कि गाँव में, विलेजेस में, रूरल एरियाज में 100 डेज एम्प्लॉयमेंट कंपलसरी देगी आउट ऑफ 365 डेज. अब 100 डेज एम्प्लॉयमेंट तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे रही है. उनसे वर्क क्या करवा रहे हैं? तो गांव की सड़कें खुदवा ली, तालाब खुदवा लिया, इधर की मिट्टी उधर डलवा दिया, कुछ सड़कें बनवा ली. जबकि वो सारे काम जो हैं जेसीबी मशीन के साथ या दूसरी टेक्नोलॉजी के साथ, विदाउट लेबर और बाय यूजिंग वेरियस लेस लेबर, इट कैन बी डन. अब आज के रेट में हर साल गवर्नमेंट जो है वो उनका बजट है 55,000 करोड़ रुपीस का फॉर मनरेगा अप्रोक्सीमेटली. आई डोंट हैव द एग्जैक्ट फिगर. अगर उन्हीं काम को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर मशीनरी से करवाना शुरू करे, टेक्नोलॉजी से करवाना शुरू करे, तो शायद वो सारे फंक्शंस जो हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 40,000 करोड़ में कंप्लीट कर सकती है. एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैन सेव 50,000 करोड़ रुपीस ऑफ मैक्रो लेवल. बट पर्पस क्या है मैक्रो लेवल पे? कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है वो इस तरीके से होना चाहिए कि ये पैसे जो अनएम्प्लॉयमेंट है गाँव में, उन वर्कर्स को मिलना चाहिए, ना कि ये पैसा जेसीबी मशीन को जाना चाहिए, ना कि ये पैसा टेक्नोलॉजी को जाना चाहिए. आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? तो ये एक मैक्रो लेवल का थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, जिसमें कि स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है
वो इस तरीके का प्लान करती है कि वो किस तरह की पॉलिसीज डिटरमाइन करे जिससे कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जो नेशनल इनकम है वो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो कि कुछ पैसा टेक्नोलॉजी के ऊपर जाए, कुछ मेडिकल के ऊपर जाए, कुछ एजुकेशन के ऊपर जाए, और हमारा जो मैक्सिमम जो हो वो लोगों के वेलफेयर के लिए जाए, लोगों के जॉब क्रिएशंस के लिए जाए, स्पेशली इन रूरल एरियाज. So this is the example of the macroeconomics point of view and there are a lot of examples of here. But ये मैंने आपको इसलिए बताया कि आप इस चीज़ को समझें. Now meaning of the factor pricing. भाई फैक्टर क्या है आपको बताया. फैक्टर हमारे पास लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, एंटरप्रेन्योरशिप है. और आज के डेट में अभी तक ऐसे इसको किसी थ्योरी में इंट्रोड्यूस नहीं किया गया, बट आज के डेट में जो है वो एक टेक्नोलॉजी हर फैक्टर में एक बहुत बड़ा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, क्योंकि अगर आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं है तो यू विल नॉट बी इन पोजीशन टू मैन्युफैक्चर. नाउ द प्राइस ऑफ दीज फैक्टर्स वर कॉल्ड रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट रिस्पेक्टिवली. Now the mechanism of the determination of the factor prices does not differ fundamentally from that of the commodity prices. Factor prices are also determined by the interactions of the market demand and supply curve. The difference lies in the determinants of the demand and supply of the productive resources. तो वो क्या करें कि देखो जिस तरह से कमोडिटी प्राइसेस फिक्स हो रहे हैं डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे, लगभग हमारे जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस है उनके भी जो प्राइसेस है प्राइवेट इकोनॉमी में या ओपन इकोनॉमी में वो भी डिमांड और सप्लाई के हिसाब से फिक्स हो रहे हैं. अगर मान लीजिए लैंड प्लेंटी ऑफ लैंड्स अगर अवेलेबल होगा तो डेफिनेटली जो कॉस्ट है वो फ्रैक्शन ऑफ कॉस्ट होगा. अगर वर्कफोर्स बहुत सारा अवेलेबल होगा तो इंडस्ट्री जो है विल पे लेस फॉर देम. लेकिन अगर किसी दिन लेबर की सप्लाई कम होगी तो व्हाट विल हैपन कि उनका डिमांड बढ़ जाएगा एंड देन वी हैव टू पे मोर फॉर दैट. तो यहाँ भी जो है डिमांड और सप्लाई फैक्टर्स यहाँ पर भी जो है ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस में आते हैं. अगर मान लीजिए बहुत ज़्यादा कैपिटल फ्लो अगर इंडिया में होगा तो डेफिनेटली जो कॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट है वो कम हो जाएगा. अगर अच्छे एंटरप्रेन्योरशिप मैनेजमेंट की सप्लाई अगर इंडिया में बढ़ जाएगी तो डेफिनेटली जो पैकेजेस है टॉप लेवल पे वो रिड्यूस हो जाएंगे एक्चुअली. सो वहाँ पर भी जो है ऑन द बेसिस ऑफ द डिमांड एंड सप्लाई डेफिनेटली गवर्नमेंट पॉलिसीज के ऊपर भी डिपेंड करता है, बट अगेन ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई द प्राइसेस आर बीइंग मोस्टली फिक्स्ड. नाउ डिमांड एंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. टू फीचर्स ऑफ द डिमांड फॉर द फैक्टर्स. अच्छा मैं बता दूं ये कौन सा सब्जेक्ट का पढ़ाई हो रहा है. देखिए ये जो सब्जेक्ट है ना वो एक्चुअली है माइक्रो इकोनॉमिक्स थ्योरी एंड एप्लीकेशन 2 है, समझ गए. और ये जो है वो बीकॉम ऑनर्स सेकेंड ईयर के सिलेबस में उसका ये सिलेबस है माइक्रो इकोनॉमिक्स थ्योरी एंड एप्लीकेशन 2. फाइन. ये बुक है दीपा श्री की. फाइन. अगर आपको बहुत अच्छे तरीके से इसको कवर करना है तो आपके पास ये बुक होना चाहिए. फाइन. इसको आप अमेज़न से भी आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं. फाइन. अमेज़न पे भी ये अवेलेबल है. फाइन. स्कॉलर जो है स्कॉलर टेक प्रेस जो है वो इसको पब्लिश करती है और इसके ऑथर हैं दीपा श्री. अगर आपके पास ये बुक अवेलेबल होगा, माय वीडियो इज़ नॉट सब्सटीट्यूट फॉर दिस बुक एक्चुअली. फाइन. आई एम जस्ट यूजिंग इट फॉर एज ए नोट्स एक्चुअली. फाइन. तो अगर आपके पास ये बुक अवेलेबल होगा तो आप इन चीज़ों को जो है बहुत आसानी से समझ सकते हैं. नाउ यू सी अब कह रहे हैं टू फीचर्स ऑफ द डिमांड फॉर फैक्टर्स आर demand for the factor is derived or indirect demand. The demand for a commodity is direct, that is directly satisfied a consumer wants. क्योंकि कंज्यूमर क्या करता है वो कंज्यूमर प्रोडक्ट की कमोडिटीज की डायरेक्ट डिमांड करता है. The demand for a factor is indirect in the sense that it is demanded by the producer because it helps in the production of the commodity which is directly demanded by the consumer in the market. कहने का मतलब कि हम जो है अगर इंडस्ट्रियल लेबर, इंडस्ट्रियल वर्कफोर्स, इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योरशिप और इंडस्ट्रियल लोन्स की अगर बात करें
तो वो हम किसी लोकल मार्केट में, सोम बाज़ार में, बुध बाज़ार में अगर हम जाएंगे तो वहाँ पे वो अवेलेबल नहीं होगा। वहाँ पे हम लेबर्स को खरीद नहीं सकते। हाँ ठीक है, छोटे मोटे लेबर्स जो हैं वो चौक पे मिलते हैं, एक दो लेबर अगर घर में कोई काम है तो उसके लिए आप चौक पे जाकर उनको बुला सकते हैं, दैट इज़ डिफरेंट इशू। बट जो इंडस्ट्रियल लेबर है, जो इंडस्ट्रियल लैंड है, जो इंडस्ट्रियल कैपिटल है, जो इंडस्ट्रियल जो एंटरप्रेन्योरशिप है, वो जो है वो ओपन मार्केट में अवेलेबल नहीं होता है, तो इसलिए वहाँ पे कोई डायरेक्ट डिमांड नहीं होता है। तो होता क्या है, कंज्यूमर जो है वो कंज्यूमर प्रोडक्ट या कमोडिटी जो है, कंज्यूमर उसका डिमांड करता है कि मतलब कंज्यूमर मार्केट में जाता है और वो साबुन खरीदता है, वो बिस्किट खरीदता है, वो आटा खरीदता है, वो च्यवनप्राश खरीदता है, वो मेडिसिन खरीदता है, वो बुक्स खरीदता है, वो नोटबुक खरीदता है। अब वो जो शॉपकीपर हैं, जो रिटेलर्स हैं, वो होलसेलर से चीज़ें लेते हैं, होलसेलर सीएनएफ एजेंट से लेता है, सीएनएफ एजेंट जो है वो मैन्युफैक्चर से लेता है। अब अभी देखिए कोरोना का टाइम है, लॉकडाउन चल रहा है। अब इसमें बीच में क्या हुआ कि मैगी ने कुछ समय के लिए उसकी प्लांट में प्रोडक्शन बंद हो गया। तो जब मैगी का प्लांट में प्रोडक्शन बंद हो गया तो कुछ समय के लिए क्या हुआ, मार्केट में मैगी की सप्लाई बंद हो गई, दुकानों में मैगी अवेलेबल नहीं थे, तो लोग उसके सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट को यूज करना शुरू कर दिया। वैसे ही बीच में कार का प्रोडक्शन बंद हो गया। अभी कल परसों ये र्यूमर फैला कि कंट्री में सॉल्ट जो है वो उसका शॉर्टेज हो रहा है, तो लोग दुकानों पे भाग भाग के महंगे रेट पे जो है वो 2-2 किलो 5-5 किलो सॉल्ट खरीद के रख रहे हैं। उसका रीज़न क्या हुआ कि 5-6 दिन पहले न्यूज़ आया कि लॉकडाउन की वजह से जो है वो वर्कफोर्स जो है, जो सॉल्ट प्रोड्यूस करता है नियर जो समुद्र के इलाके में, जो नियर बाई जो सॉल्ट को जो प्रोड्यूस करता है, वो वर्कर्स जो है लॉकडाउन की वजह से वो काम नहीं कर पा रहे थे। अब ये जो महीना होता है वो समर का महीना होता है, और समर में ही मैक्सिमम सॉल्ट का प्रोडक्शन होता है, क्योंकि इसमें जो समुद्र का पानी को जो खेतों में जमा किया जाता है वो जल्दी सूखता है और वो जल्दी सॉल्ट में कन्वर्ट होता है। अब उसको प्रोसेस करने के लिए, उसको कलेक्ट करने के लिए, उसको फिर पैकिंग करने के लिए, इनके लिए लेबर फोर्स चाहिए। तो ये लॉकडाउन की वजह से क्या हुआ कि इन द मंथ ऑफ अप्रैल सॉल्ट का प्रोडक्शन लगभग बंद हो गया। अब जब वहाँ पे सॉल्ट का प्रोडक्शन बंद हो गया तो जो कंपनी इसको प्रोसेस करती है वहाँ पे भी रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं थे, फिर वहाँ भी कुछ वर्कर्स के इश्यूज हुए, ट्रांसपोर्टेशन का इश्यूज हुआ, तो वहाँ पे भी कुछ प्रोडक्शन कम हो गया। अब ये कम होने से क्या हुआ कि जो सप्लाईज थी, क्योंकि ये 2-3 महीना जो समर होता है ना, इसमें सॉल्ट का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। एक बार रेनी सीजन आ गया तो सॉल्ट का प्रोडक्शन कम हो जाता है, विंटर्स में भी जो है सॉल्ट का प्रोडक्शन कम हो जाता है। तो 3 महीने जो सॉल्ट प्रोड्यूस होता है उसको हम स्टोर करके, और इस तरीके से उसको जो है ऑलमोस्ट 12 मंथ्स हम यूज़ करते हैं। नहीं, लिटिल बिट ऑफ प्रोडक्शन रेस्ट ऑफ द टाइम में भी होता है, बट वो उतना नहीं होता है जितना इस 3 महीने में होता है। 70-80% ऑफ सॉल्ट प्रोडक्शन हम इस 3 महीने में कर लेते हैं। अब क्या हुआ बेसिकली कि लॉकडाउन की वजह से क्या हुआ कि अब एक रूमर फैला, अब लोग भाग भाग के क्या कर रहे हैं, वो पैनिक बाइंग कर रहे हैं और वो ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्ट परचेज कर रहे हैं मार्केट से, एंड दे आर पेइंग एक्स्ट्रा मनी एक्चुअली। फाइन। तो मतलब बात ये हो रही है कि देखिए क्या होता है, कंज्यूमर जो है वो रिटेलर के पास डिमांड करता है, रिटेलर पीछे होलसेलर को फ़ोन करता है, होलसेलर पीछे सीएनएफ एजेंट को फ़ोन करता है, सीएन या डिस्ट्रीब्यूटर को फ़ोन करता है, डिस्ट्रीब्यूटर पीछे कंपनीज को फ़ोन करती, कॉन्टैक्ट करती है, कंपनी मैन्युफैक्चर करता है। तो कंपनी लेवल पे क्या होता है, इंडस्ट्रीज लेवल पे क्या होता है, जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उसका जो डिमांड है वो इंडस्ट्रीज करती है, क्योंकि वो प्रोडक्शन करने के लिए उनको लेबर चाहिए, उनको लैंड चाहिए फैक्ट्री सेटअप करने के लिए, उनको प्लांट लगाने के लिए कैपिटल चाहिए, उनको एंटरप्रेन्योरशिप चाहिए एक्चुअली फाइल मैनेज करने के लिए। तो इसलिए यहाँ पे क्या होता है, डायरेक्ट डिमांड नहीं होता है, यहाँ पे क्या होता है, डिराइव डिमांड होता है। यानी कंज्यूमर ने डिमांड किया, फिर वो रिटेलर ने डिमांड किया होलसेलर से, होलसेलर ने डीलर से डिमांड किया, डीलर ने सीएनएफ एजेंट से डिमांड किया, सीएनएफ एजेंट ने जो है इंपोर्टर से डिमांड किया या मैन्युफैक्चरर से डिमांड किया, फिर वो मैन्युफैक्चरर जो है वो डिमांड करेगा फैक्ट्री प्रोडक्ट से कि वो इन सब चीज़ों को असेंबल करेगा, फिर वो इंडस्ट्रीज एरिया में प्लांट लगाएगा, फिर वो मैन्युफैक्चर करेगा। तो यहाँ पे जो डिमांड होता है वो इनडायरेक्ट डिमांड होता है, इसको हम बोलते हैं डिराइव डिमांड होता है।
Now, in other words, the demand for a factor is derived from the demand for the commodity which the factor helped to produce. Now, the further demand for the factor of production depend on what they can produce, on their productivity. Demand for a commodity depends upon its marginal utility to consumers. Now, next we are having zero. Demand for factor of production is necessarily a joint demand. वन फैक्टर बाय इटसेल्फ कैनॉट प्रोड्यूस एनीथिंग. अब आपने क्या किया, बहुत सारे लेबर हायर कर दिए, मशीनरी है नहीं आपके पास. अब देखिए अभी फिर कोरोना में क्या हो रहा है कि आपने लॉकडाउन हो गया, अब लॉकडाउन की वजह से लेबर फंस गई, तो लेबर में क्या हुआ, एक पैनिक क्रिएट हो गया कि रेंट कहाँ से देंगे, ये कहाँ से देंगे, और उनका डेफिनेटली शॉर्ट टर्म में एम्प्लॉयमेंट भी बहुत लोगों का इफेक्ट हुआ. तो लोगों ने सोचा कि इट इज़ बेटर टू मूव टू देयर विलेजेस, एक्चुअली देयर होम टाउन. तो उन लोगों ने क्या किया कि भाई जो भी उनको नियर बाई माध्यम मिला, कोई साइकिल से अपने घर जा रहा है, कोई पैदल जा रहा है, कोई अपनी ऑटो चला रहा है वो ऑटो लेके चला गया, कोई रिक्शा लेके चला गया, किसी के पास छोटी कैब है वो 10-20 लोगों को वो लेके निकल गया. फिर अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जब पैनिक ज़्यादा होने लगा तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ स्पेशल ट्रेन्स दिए. अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रेगुलर ट्रेन स्टार्ट कर दिया. अब क्या हुआ कि अब सब लेबर जो है वो गांव पहुंच गई. अब जब गांव पहुंच गई तो यहाँ पे जो एसेंशियल गुड्स है वो तो मैन्युफैक्चर होना है ना, और कुछ दूसरे गुड्स भी अब मैन्युफैक्चर होने हैं, क्योंकि बाकी भी जो इकोनॉमिक सिस्टम है उसमें काम स्टार्ट होना है. फाइन, बच्चों की पढ़ाई होनी है, स्टेशनरी मैन्युफैक्चर होने, मेडिसिन मैन्युफैक्चर होने, जो भी चीज़ें हैं. अब इंडस्ट्रीज में प्रॉब्लम ये आ रही है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने या स्टेट गवर्नमेंट ने जो है कुछ चीज़ों में वो उन्होंने परमिशंस दे दी इंडस्ट्रीज को खोलने के लिए विथ लॉट ऑफ रिस्ट्रिक्शंस, विथ सोशल डिस्टेंसिंग एंड विथ लॉट ऑफ कंडीशंस एक्चुअली. बट अब उनके पास क्या प्रॉब्लम है कि उन्होंने इंडस्ट्री खोल दी, मशीनें स्टार्ट कर दी. अब कहने जी वी डोंट हैव द लेबर एक्चुअली. अब लेबर नहीं है तो प्रोड्यूस कौन करेगा. तो उसी तरीके से क्या होता है यहाँ पे कि ज्वाइंट डिमांड होता है. आपके पास दुनिया भर का लेबर है, आपके पास मशीनरी नहीं है, आपके पास इंडस्ट्रीज नहीं है, आपके पास कैपिटल नहीं है, आपके पास मैनेजमेंट नहीं है, एंटरप्रेन्योरशिप नहीं है, you will not be able to manufacture. You have lot of labor, you have lot of land, but you lack capital, you lack entrepreneurship, you won't be able to manufacture. Fine. So to produce a commodity or services, different factors have to be used together or jointly. Now its implication is that since all factors are jointly demanded, the interrelationship among factors is strong and only general equilibrium analysis is applicable. This analysis will explain the determination of the price of all the factors simultaneously. So the marginal productivity theory has designed to be such a general equilibrium theory. Now we talk about the supply of the factor of production. So there is no definite positive correlation between changes in the price and reaction of the supply. मतलब जो चेंजेस इन प्राइस है और सप्लाई के ऊपर जो उसका इम्पैक्ट आने वाला है उसका कोई बहुत बड़ा एक पॉजिटिव कोरिलेशंस जो है वो डेफिनेटली मतलब निकालना मुश्किल है एक्चुअली. इन केस ऑफ कमोडिटीज के केस में क्या होता है कि एक जो डेफिनेट पॉजिटिव कोरिलेशंस है ना बिटवीन द प्राइसेस ऑफ ए कमोडिटी एंड इट्स सप्लाई विच गिव्स एन अपवर्ड स्लोपिंग सप्लाई कर्व ऑफ द कमोडिटी. मतलब क्या है कि आपने देखा कि बीच में प्याज जो है अनियन शॉर्ट हो गया इंडिया में, ओले पड़ गए, प्रोडक्शन डैमेज हो गया, जिसका नतीजा क्या होगा कि प्राइसेस जो है वो सीधा 150 रुपीज चला गया पर किलो. अब जैसे ही रेट आपके 70 हो गए, 80 हो गए, 100 हो गए, 150 हो गए, तो लोग क्या करेंगे. पहले 20 रुपए किलो मिल रहा था, अब 100 रुपए किलो मिल रहा है, 80 रुपए किलो मिल रहा है. तो लोग क्या करेंगे, या तो वो क्या करेंगे प्याज का कोई सब्स्टिट्यूट ढूंढेंगे, प्याज खाना कम कर देंगे, ऑनियन खाना कम कर देंगे, या वो क्या करेंगे कि 20 रुपए का ही प्याज खरीदेंगे, 250 ग्राम खरीदेंगे, और जहां पे एक प्याज हो रहा था वहां पे क्वार्टर ऑनियन यूज करेंगे, जहां पे 2 का ऑनियन यूज हो रहा था वहां पे 1 ही ऑनियन यूज करेंगे. यानी क्या होता है कि जो कंज्यूमर प्रोडक्ट है ना, जो कमोडिटीज प्राइसेस है, उसमें क्या होता है एकदम डायरेक्ट इंपैक्ट दिखता है एक्चुअली, और इमीडिएट इंपैक्ट दिखता है कि आपने कस्टमर के दिमाग में एक प्राइस है और जैसे ही
प्रोड्यूसर ने बोला कि भाई ये तो रेट अभी 80 रुपये किलो है, ये तो 100 रुपये किलो है, तो तुरंत कंज्यूमर मेंटली कैलकुलेट करता है कि अरे ये तो कल 20 रुपये किलो मिल रहा था। अभी न्यूज़ में भी सुन लिया कि ऑनियन का प्रॉब्लम हो गया है, फाइन। तो वो मेंटली प्रिपेयर्ड होता है, वो जब बाजार जाता है ना तो वो पैनिक करता ही नहीं। अगर वो एसेंशियल गुड्स ना हो तो वो पैनिक नहीं करेगा। वो क्या करेगा, वो सीधे अपनी जो है डिमांड जो है ना उसके हिसाब से एडजस्ट करेगा। कुछ खरीदना बंद कर देंगे लोग, जो पहले आधा किलो प्याज 250 ग्राम वो खरीदना ही बंद कर देंगे। जो 1 किलो 2 किलो ऑनियन खरीद रहे थे वो 250 ग्राम खरीदना शुरू कर देंगे, फाइन। जो पकौड़े में ऑनियन यूज हो रहे थे उसके लिए लोग सब्सटीट्यूट मतलब लोग मूली यूज करना शुरू कर देंगे, कुछ दूसरी चीजें यूज करना शुरू कर देंगे, फाइन। तो वहां पे क्या होता है, एकदम डायरेक्ट इंपैक्ट दिखता है एक्चुअली, फाइन। नाउ consider the factor land, labor, and the capital. The supply of land is taken to be fixed. By definition, in case of labor, correlation between the base rate and the supply of labor can be positive or negative. Backward bending supply. Curve of the labor is explained on page number 78-79. अभी हम लोग देखेंगे आगे actually. Now, with regard to supply of the capital, there is no definite positive correlation between the rate of the interest and supply of saving. मतलब ये कह रहे हैं कि देखो लैंड तो फिक्स है जी, उसमें तो लैंड का कोई डिमांड मतलब डिमांड तो बढ़ सकता है, मतलब कोई सप्लाई नहीं बढ़ सकती है, तो भाई डिमांड बढ़ेगा तो वो चीज़ है, तो इसलिए लैंड का तो अलग सिचुएशन है। लेबर में क्या होता है, थोड़ा पॉजिटिव नेगेटिव कोरिलेशन होता है कि मतलब अगर कहीं पे इंडस्ट्री ज़्यादा पे कर रही है तो वहाँ पे वर्कर की सप्लाई बढ़ जाएगी, लोग मेट्रोज में जाएंगे एक्चुअली काम करने के लिए, लोग वहाँ जाएंगे जहाँ पे पता चला इंडस्ट्रीज है या जहाँ पे जॉब्स अवेलेबल है, जिस शहर में ज़्यादा जॉब्स अच्छा मिल रहा है, जहाँ अच्छी सैलरी मिल रही है। लोग इंटरनेशनली लोग जाते हैं, दुबई में अच्छी सैलरी मिलती है, यूके में अच्छी सैलरी मिलती है, तो लोग फॉरेन चले जाते हैं जॉब करने के लिए, यहाँ से डबल सैलरी मिल रही है तो चलो वहाँ पे जाकर काम करते हो। तो वहाँ पे क्या होता है कि वो मतलब प्राइसिंग डिमांड उसके हिसाब से उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है। कैपिटल में कोई बहुत डेफिनेट पॉजिटिव कोरिलेशन नहीं होता है, क्योंकि कैपिटल बहुत सारी जो है वो गवर्नमेंट के थ्रू मैनेज होती है, मैक्रो लेवल की जो पॉलिसीज बनती है। अब गवर्नमेंट आज के रेट में जो है वो इन्वेस्टमेंट को प्रमोट कर रही है, तो वो थोड़े चीपर मोड ऑफ लोन्स प्रोवाइड कर रही है, फाइन। अब कांग्रेस आ जाएगी तो उनकी पॉलिसी अलग है, वो सेविंग्स के ऊपर इंटरेस्ट बढ़ा देती है एक्चुअली, तो वो फिर लोन्स के ऊपर भी इंटरेस्ट बढ़ा देती है, फाइन, क्योंकि उनकी थोड़ी सोशलिस्टिक अप्रोच होती है। तो यहाँ पर कोई ऐसा नहीं होता है कि मतलब कैपिटल में डेफिनेटली अगर रेट्स कम है तो थोड़े डिमांड्स तो बढ़ेंगे, उसमें कोई दो मत नहीं है, बट बहुत बड़ा जो है वो एक मतलब कोरिलेशन इम्पैक्ट जो है वो डायरेक्टली नहीं दिखता है। Now, price of the factor does not depend upon its cost of production. कह रहे हैं कि देखिए दिस इज बिकॉज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हैज नो प्रिसाइज मीनिंग व्हेन अप्लाइड टू ए फैक्टर. For example, land is defined as the original and indestructible power of the soil by Ricardo. So that is the supply of the land is fixed from the point of view of the economy as a whole, and no cost will increase the supply of the land. In case of labor, the term cost of production has no precise meaning. Fine. तो ये कह रहा है कि मतलब प्राइस ऑफ जो फैक्टर्स है ना वो उसके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से कोई बहुत ज़्यादा कनेक्टेड नहीं होता है जैसे कंज्यूमर प्रोडक्ट में होता है। कि भाई अगर मान लीजिए मेरी जो अगर कंज्यूमर प्रोडक्ट की मान लीजिए मेरी पेन की जो सेलिंग प्राइस 5 रुपये है और मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो 5 रुपये हो जाए, 5.25 रुपये हो जाए, या पहले हम 4 रुपये का बना रहे थे अब वो बढ़कर 450 का हो गया, 480 का हो गया, मार्जिन बहुत कम हो गए, तो हम मैन्युफैक्चरिंग करना बंद कर देंगे एक्चुअली। समझ बात को? तो ये चीज़ है कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से कोई बहुत ज़्यादा लिंक नहीं होता है, फाइन। क्योंकि अब लैंड की अवेलेबिलिटी भी अलग अलग है, मतलब जैसे आप फ्री होल्ड लैंड परचेज कर सकते हैं, इंडस्ट्रियल लैंड ज़्यादातर गवर्नमेंट्स देती है, तो गवर्नमेंट अपने यहाँ इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करने के लिए बहुत कम रेट के ऊपर जो है आपको इंडस्ट्रियल लैंड प्रोवाइड कर देती है लीज के बेसिस पे, क्योंकि उसको इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करना होता है। फिर कभी कभी वो इंडस्ट्रीज़ को इन्वाइट करती है तो फिर वो तो अक्वायर करती है हायर कॉस्ट के ऊपर, बट अब उनकी अपनी मैक्रो लेवल की प्लानिंग, हमको पता है कि चलो भाई हमने लैंड एक्वायर किया, किसानों को रेट ज़्यादा दिया, बाद में मैक्रो लेवल पे इसको डेवलप कर दिया, इंडस्ट्रीज़ को हमने सस्ते लेवल पर लैंड दे दी, अब इंडस्ट्री लग गए तो फिर वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो जाएगी, वहाँ पे रियल एस्टेट का डिमांड बढ़ जाएगा,
वहाँ पे मार्केट की डिमांड बढ़ जाएगी, वहाँ पे मॉल का डिमांड बढ़ जाएगा, वहाँ पे बाकी चीज़ों का डिमांड बढ़ जाएगा। तो गवर्नमेंट के पास इनडायरेक्टली टैक्सेशन के फॉर्म में, दूसरे फॉर्म में, और फिर जीडीपी के फॉर्म में, दूसरी चीज़ों के रूप में फॉर्म में जो है वो उनके पास गवर्नमेंट ऑफ के पास रिटर्न चला जाएगा एक्चुअली। अब जैसे मान लीजिए अभी बात कर रहे थे कि जो हांगकांग है वहाँ पे जो गवर्नमेंट का टैक्सेशन है वो जीरो है एक्चुअली। अब गवर्नमेंट का टैक्सेशन अगर वहाँ पे जीरो है तो फिर गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू कहाँ से आ रहा है एक्चुअली? हाँ, तो उसका मैं मतलब यूट्यूब वीडियोस में देख रहा था, तो उन्होंने कहा कि वहाँ की गवर्नमेंट की पॉलिसी बहुत अलग है एक्चुअली। गवर्नमेंट क्या करती है, जनरल पब्लिक से जो है ना वो टैक्स नहीं वसूल लेती है, तो उनके पास क्या होता है, डिस्पोजेबल इनकम काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। अब गवर्नमेंट क्या करती है कि जो रियल एस्टेट्स है ना वो ज़्यादातर गवर्नमेंट खुद डेवलप करती है, और खुद डेवलप करने के बाद वो क्या करती है कि वो उन रियल एस्टेट को, फ्लैट्स को, मॉल्स को या दूसरी चीज़ों को जो है, या अगर वो किसी इंडस्ट्रियल लोगों को लैंड्स दे रही है तो दे चार्ज हायर अमाउंट एक्चुअली। तो जब गवर्नमेंट एक फ्लैट जो 1 करोड़ का उसको 5 करोड़ में बेच रही है तो फिर गवर्नमेंट को वहाँ से प्रॉफिट मिल जाता है, तो गवर्नमेंट वहाँ से मैनेज कर लेती है, क्योंकि गवर्नमेंट को तो फंड्स चाहिए ना, नहीं तो अदरवाइज वो डेवलप कैसे करेगी? जीरो टैक्स सिस्टम पे तो गवर्नमेंट चल नहीं सकती बेसिकली। फाइन। नाउ सिंस द बेसिक फीचर्स which derive the demand and supply curve of a factor are different from that of the commodity, a different theory of the factor pricing was necessary. Now we talk about the marginal productivity theory. ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी में क्या हो रहा है बेसिकली, तो कह रहा है कि जॉन बेट्स क्लार्क formulated the marginal productivity theory as a general theory of the distribution to explain the price of the every factor. It was simultaneously developed and perfected by Stanley Jevons, Wicksteed, Leon Walras, Alfred Marshall, and J.R. Hicks. There are therefore many versions of this theory. We shall confine ourselves to the modern view given by the Marshall and Hicks. Clark version of the marginal productivity theory states that the price of a factor is determined by its marginal product. He assumed a completely static economy. He also assumed that the stock of each factor is given and fully employed. So the supply curve of the factor is perfectly inelastic. Now, मार्शल और हिक्स ने क्या मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी दी? Alfred Marshall and J.R. Hicks criticized J.B. Clark theory and maintained that price of a factor is determined by both demand and supply curve of the factor. J.B. Clark theory explained only the demand side of the theory and is thus considered incomplete and inadequate explanation of the theory of the factor pricing. मतलब इन्होंने क्या बोला कि अल्फ्रेड मार्शल एंड जे आर हिक्स ने क्या किया, जेबी क्लार्क की थ्योरी को क्रिटिसाइज किया और इन्होंने कहा कि जो प्राइस ऑफ ए फैक्टर है ना, दैट विल डिटरमाइन बोथ बाय डिमांड एंड सप्लाई कर्व ऑफ फैक्टर. J.B. Clark theory explained only the demand side of the factor theory and is thus considered incomplete and inadequate explanation of the theory of the factor pricing. अब देखिए यहां पर क्या कह रहा है आपका, यहां पे कह रहा है कि मीनिंग ऑफ द मार्जिनल प्रोडक्ट. द टर्म्स मार्जिनल प्रोडक्ट हैज 3 different but related meanings. We have the marginal physical product, MPP. It is defined as additions to the total product when one more unit of the variable factor is employed. The amount of all other factors remaining unchanged. Fine. तो ये क्या कह रहा है आपका, कह रहा है कि कोई वेरिएबल फैक्टर है, उसके एक यूनिट के चेंज होने से टोटल प्रोडक्शन के ऊपर क्या चेंज हो रहा है. द अमाउंट ऑफ ऑल अदर फैक्टर्स रिमेन अनचेंज. मतलब कि जैसे मान लीजिए लैंड उतना ही है, टेक्नोलॉजी हम वही यूज़ कर रहे हैं, एंटरप्रेन्योर्स वही यूज़ कर रहे हैं, कैपिटल उतना ही लगा हुआ है. हमने क्या किया कि लेबर वर्कफोर्स बढ़ा दिया, 1 शिफ्ट की बजाय 2 शिफ्ट काम शुरू कर दिया, 2 शिफ्ट की बजाय 3 शिफ्ट वर्क शुरू कर दिया. फाइन. तो हम देखते हैं कि वो जो एक वेरिएबल जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, उसके 1 यूनिट के बढ़ने से हमारा प्रोडक्शन कितना बढ़ रहा है, इसको हम बोलते हैं मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट. अब दूसरा है मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट. It is defined as addition to the total revenue resulting
from the employment of one more unit of the variable factor and the sale of the additional product. In mathematical notation, marginal revenue product is going to be the marginal product and the marginal revenue. मतलब यहां पर तो उन्होंने कहा कि कितना यूनिट फिजिकल प्रोडक्ट बढ़ रहा है, बट इन्होंने कहा कि नहीं रेवेन्यू कितना बढ़ रहा है. पता चले कि हमने प्रोडक्शन बढ़ा दिया, सप्लाई बढ़ गई और मार्केट में हमको अब कम रेट में बेचना पड़ रहा है. समझ रहे हैं बात को कि हमने क्या किया, प्रोडक्शन बढ़ा दिया, हमें लेबर लगा दिया और चूंकि अब सप्लाई बढ़ गई तो हमें क्या करना पड़ रहा है कि भैया अब सप्लाई बढ़ गई तो अब उसको क्या करो भाई, अब उसको कम रेट में बेचो क्योंकि वो लोग ज़्यादा डिमांड नहीं कर रहे हैं. तो ओवरऑल क्या हुआ कि हमारा एक टोटल रेवेन्यू आएगा. फाइन. अब चूंकि हमने रेट्स कम कर दिए तो हमारा जो टोटल रेवेन्यू है, जो ग्रॉस रेवेन्यू है, वो एडिशनल यूनिट, एक्स्ट्रा यूनिट से कम हो जाएगा. तो उन्होंने कहा कि भाई नो वील नॉट गो फॉर मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट, वील बेसिकली गो फॉर मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट. एंड देन वी टॉक अबाउट द वैल्यू ऑफ द मार्जिनल प्रोडक्ट. क्या कह रहा है कि इट इज डिफाइंड एज प्रोसीड्स फ्रॉम द सेल ऑफ द मार्जिनल प्रोडक्ट इन मैथमेटिकल नोटेशन. सो वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट क्या है आपका, तो मार्जिनल प्रोडक्ट इनटू द प्राइस ऑफ दैट प्रोडक्ट. फाइन. मतलब यहां पे हमने क्या किया, मार्जिनल रेवेन्यू नहीं लिया बल्कि हमने क्या किया, प्राइस ऑफ दैट प्रोडक्ट लिया. नाउ अब इस थ्योरी की एजम्पशंस क्या क्या है. देखिए हम ये सोशल साइंस की चीजें पढ़ रहे हैं और सोशल साइंस की चाहे हम इकोनॉमिक्स पढ़ें या अकाउंट्स पढ़ें या ये कोई भी सब्जेक्ट पढ़ें, तो दीज आर द थ्योरीज आर रिक्वायर्ड फॉर द सोसाइटी and societies vary with the different thought of the individuals and the thought of the groups actually. Fine. तो ये यहाँ पे जो थ्योरियां काम करती है ना, वो एजम्पशंस बेस्ड काम करती है. अब कह रहे हैं कि देखो जी, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग एजम्पशंस. क्योंकि अगर ये एजम्पशंस नहीं होगा तो ये जो प्रिंसिपल है ना, जो थ्योरी दी गई ना, वो फेल हो जाएगा. एक तो कह रहे हैं ऑल फैक्टर्स आर होमोजीनियस. Perfect competition exists in the factor market. Variable input coefficient, it means, अब देखिए क्या कह रहा है, perfect competition exists in the factor market. अब दिल्ली में क्या है, दिल्ली मेट्रो कंस्ट्रक्ट हो रहा है, या जब दिल्ली मेट्रो कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ, we wanted thousands and thousands labor for those work. अब अगर ओपन मार्केट में दिल्ली मेट्रो अगर डिमांड करती तो क्या होता, वर्कर की सप्लाई बहुत कम होती. और चूंकि ओपन मार्केट होता तो क्या होता बेसिकली कि जो प्राइसेस ऑफ जो लेबर है ना, वो डबल हो जाता, ट्रिपल हो जाता. तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सीधे कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्टैक्ट किया और उनको जो भी प्रीमियम उन्होंने पे किया और उन्होंने कहा कि भाई हमें जो है आप ये 2000 लेबर 5000 लेबर अरेंज करके दें, इट इज योर हेडर. नाउ इट इज द कॉन्ट्रैक्टर ड्यूटी कि वो बल्क में जो है वर्कर्स को बिहार से लेकर आएंगे, यूपी से लेकर आएंगे, उड़ीसा से लेकर आएंगे, साउथ के किसी डिस्ट्रिक्ट से लेकर आएंगे, किसी स्टेट से लेकर आएंगे. जहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट है वहाँ पर उनको कॉन्टैक्ट करेंगे, उनके ग्रुप लीडर को कॉन्टैक्ट करेंगे, उनको मोटिवेट करेंगे और पूरा का पूरा बंच ऑफ ग्रुप को जो है वो लेकर आएंगे. और यहाँ पे फिर दे वॉन्ट अलाउ देम टू गो टू द ओपन मार्केट फॉर सप्लाइंग दियर सर्विसेज. तो उनको क्या करेंगे, एक छोटा टाउनशिप बना देंगे, टेम्पररी वहां पे रखेंगे. वहां से उनको ऑफिशियल व्हीकल दे देंगे कि भैया यहाँ से आपको वर्क डेस्टिनेशन पे जाना है, वहां काम करना है और फिर काम खत्म होने के बाद वर्क डेस्टिनेशन से आपको यहाँ पर आ जाना है. बल्कि जहाँ इंडिविजुअल्स बिल्डिंग्स बनती है, जो बिल्डर्स की बिल्डिंग्स बनते हैं, वहां तो साइड में एक टेम्पररी टाउनशिप ही बना देते हैं एक्चुअली. और जहाँ बिल्डिंग बनती है वहीं पे लेबर्स को अलाउ कर देते हैं रहने के लिए. बल्कि अंडर कंस्ट्रक्शन फेज में तो वो जो बिल्डिंग बन रहा होता है वहीं पे पूरी फैमिली, जब तक वो फिनिश नहीं हो जाता तब तक वहीं पे वो स्टे करती है एक्चुअली, पूरी फैमिली विथ ईयर चिल्ड्रंस. क्योंकि हस्बैंड कोई काम कर रहा है, वाइफ कोई काम कर रहा है, जो एडल्ट बच्चा है वो भी कोई ना कोई काम कर रहा है. फाइन. बाकी जो बच्चे उन्हीं के साथ वहाँ पे रह रहे हैं, फ्री में रह रहे हैं, वहीं पे खाना बना रहे हैं, वहीं पे खा रहे हैं. नहीं तो एक टेम्पररी उनके लिए एक सिस्टम बना देते हैं. अब वो क्या होगा, वो जो उनको एक टाउनशिप टेम्पररी बना दिया गया, वहां से वर्कर सीधे वो व्हीकल में लेंगे और उनको ट्रांसपोर्ट करके वर्क स्टेशन पे लेकर जाएंगे. वर्क स्टेशन पे जितने घंटे का उनका काम होगा फिर वो वर्क स्टेशन से उनको लेंगे और उनको वहां पे उनके रेसिडेंस में छोड़ देंगे. फाइन, ठीक है. और ऐसा नहीं कि वो कोई कन्फाइनमेंट में रहेंगे, बट बेसिकली वो एक कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में रहेंगे. तो जैसे यहाँ पे कहा कि
परफेक्ट कंपटीशन एग्जिस्ट इन द फैक्टर मार्केट, तो यहां पे क्या हुआ, परफेक्ट कंपटीशन एग्जिस्ट नहीं हो रहा है एक्चुअली, समझ रहे बात को। नाउ तो ये सब एजम्पशंस हैं। नाउ द वेरिएबल इनपुट कोएफिशिएंट, इट मींस दैट द प्रोपोर्शन इन विच द डिफरेंट फैक्टर्स आर कंबाइंड टू प्रोड्यूस ए कमोडिटी कैन बी चेंज एंड स्टेट टू टेक्नोलॉजी इज गिवन। नाउ the firm's profit maximization conditions. In order for a firm to maximize its total profit, it must produce is the best level of the output. Profit maximization level with the best factor combination, least cost combination. The twin profit maximization condition are worked out of the following 4 steps. Least cost combination condition. It occurs where an ISO quantity is tangent to the ISO cost line, the point of the producer's equilibrium at that point. देखिए क्या हो रहा है कि जो फर्म्स का जो पॉइंट है ना, जो फर्म है, जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, जो इन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का डिमांड कर रहा है, उसका फर्स्ट एंड प्राइम मोटिव होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना। अब उनके लिए भी क्या है कि मान लीजिए उनको दिल्ली मेट्रो बनाना है तो उनका तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस फिक्स है, अगर उनको बिल्डिंग्स बनाना है तो उनका भी जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है उनका फिक्स है एक्चुअली, अगर उनको कंज्यूमर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करना है तो उनका जो होलसेल प्राइस है वो भी फिक्स है एक्चुअली, फाइन। नहीं ठीक है, कंपनी बहुत बार प्राइसेस रिवाइज करती है, बट ऐसा नहीं कि वो डेली बेसिस पर रिवाइज कर रही है कि आज लेबर कॉस्ट बढ़ गई तो उन्होंने आज 10 पैसा बढ़ा दिया, कल घट गई तो 5 पैसा, ऐसा नहीं है, क्योंकि पूरा सिस्टम एमआरपी बेस पे काम करता है। तो अब कंज्यूमर को अगर बार बार आप एमआरपी चेंज करेंगे तो फिर देन योर लाइक एक तो उसको कंट्रोल करना मुश्किल है बेसिकली, कि अब डेली बेसिस पे पेन का रेट वेरी हो रहा है, फिर आप दुकान में जा रहे हैं, वहाँ पे शेयर मार्केट पर लिस्ट लगा हुआ कि आज हॉर्लिक्स का रेट क्या है, आज इसका रेट क्या है, आज उसका रेट क्या है, आज इसका रेट क्या है, कल क्या रेट था, ठीक है। अब उसके हिसाब से उसके ग्राफ्स बन रहे हैं, मतलब ये टेक्निकली पॉसिबल नहीं है कंज्यूमर लेवल पे। तो वहाँ पे क्या होता है कि एमआरपी फिक्स होती है, महीनों महीनों सालों साल जो है, अगर कुछ प्राइसेस रिवाइज नहीं हो रहा है तो कॉर्पोरेट क्या करती है, उसी फिक्स प्राइस के ऊपर सेल करते रहती है। कंज्यूमर को भी पता है कि भाई ये हमारा एक एवरेज रेट है, हमको जाकर इसी रेट पर हमको सामान मिल रहा है। अब आपको प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है, तो प्रॉफिट कैसे मैक्सिमाइज करेंगे? तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का एक ही तरीका होगा कि आप अपने कॉस्ट को रिड्यूस करें, मतलब लिस्ट कॉस्ट पे आप मैन्युफैक्चर करें। ये आपका प्राइम टारगेट है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए। अब लिस्ट कॉस्ट में आप क्या फोकस करेंगे भाई, कि भाई मेरे को अभी ज़्यादा लेबर नहीं लगाना है, मुझे कम लेबर में मैन्युफैक्चर कर लेना है, या अगर मेरा डिमांड एक्स्ट्रा हो रहा है तो मुझे लेबर की जगह हमें मशीन से काम करना है, ताकि जो मेरा जो कॉस्ट हो वो कम आए, मेरी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा हो, मेरा आउटपुट ज़्यादा निकले और मैं अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकूँ। फाइन। कल को अगर हमें मतलब अगर हमारी डिमांड बढ़ रहा है, हमें एडिशनल प्लांट्स लगाना है, जैसे मान लीजिए मैं स्टील सेक्टर की बात कर रहा हूँ, अब वहाँ पे आपके पास स्टील बनाने के लिए जो है फर्नेस है, 0.1 मीट्रिक टन का है, 0.2 मीट्रिक टन का है, 0.5 मीट्रिक टन का फर्नेस यूज कर रहे हैं। अब पता चला कि आपका डिमांड बढ़ रहा है, तो आप क्या करेंगे कि 0.1 0.2 मीट्रिक टन के 4 प्लांट 10 प्लांट लगाने के बजाय आप क्या करेंगे कि आप कैपेसिटी को कंसोलिडेट करेंगे और आप सीधे क्या करेंगे, 1 मीट्रिक टन का 2 मीट्रिक टन का एक बड़ा फर्नेस लगा देंगे और आप क्या करेंगे कि बल्क में मैन्युफैक्चर करना शुरू करेंगे चीजों को, तो ऑटोमेटिक क्या होगा, कॉस्ट कम हो जाएगा। अब मान लीजिए आपके 0.1 मीट्रिक टन का फर्नेस है या एलडी कन्वर्टर है, तो क्या होगा, 1 मिलियन मीट्रिक टन स्टील बनाने के लिए आपको 10 बार उसमें स्टील प्रोसेस करना पड़ेगा, 10 टाइम्स लेबर का कॉस्ट बढ़ेगा, 10 टाइम वेस्ट होगा, 10 टाइम्स आपकी प्रोडक्टिविटी कम होगी। फाइन। तो जब हम लिस्ट कॉस्ट की बात करते हैं तो फिर हमारा बेसिक टारगेट ये होता है कि हम चीजों को कम से कम कॉस्ट में मैन्युफैक्चर करें और उससे हम अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करें। अब लिस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशंस के लिए भी हम देखेंगे, उसका ग्राफ देखेंगे। फाइन। नाउ अब देखिए यहां पर क्या है कि हमारा जो स्लोप ऑफ आइसो क्वांट है वो स्लोप ऑफ आइसो कॉस्ट के बराबर होगा। सो MRTS विल बी इक्वल टू PL अपॉन PK। फाइन। तो MPL अपॉन MPK इज इक्वल टू PL अपॉन PK। फाइन। नाउ तो हमारे पास इक्वेशन क्या हो जाएगा कि
ए और बी जो है ना वो दो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, ठीक ना। तो यहां पर क्या होगा कि जो मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ ए है दैट विल बी इक्वल टू द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ बी अपॉन द प्राइस ऑफ द बी। नो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कंडीशन क्या होगा, तो आपको पता है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हमारा कहां होता है, जहां पे मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो मार्जिनल कॉस्ट को कट करता है। जहां पे इक्वल होता है वहां पर क्या होगा, जहां पे मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल होगा, वहां पे हमारा प्रॉफिट जो है मैक्सिमाइज होगा। The slope of the marginal revenue should be less than the slope of the marginal cost. Fine. Where X जो है वो एक final commodity. Now, how we can prove this? It can be proved that if the price remains the constant, an additional unit of the factor A is employed, then the total cost will increase by PA and the total product TP by its marginal product A. Thus, PA upon marginal product A is the change in the firm's total cost per unit, change in the total product. So, this is the definition of the marginal cost, where PA upon MPA is equal to MCX. Similarly, PA upon MPB, PB upon MPB is equal to MCX. Fine. So the least cost of condition of the product producing any level of the output can be retained from the first and the third. तो ये क्या होगा कि देखिए हमारे पास एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है PA अपॉन MPA, दूसरा है B PB अपॉन MPB which should be equal to the marginal cost of the product. So a firm in order to maximize total profit must have both least cost factor combination and profit maximum. मतलब कि both least मतलब जो आपके जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, तो आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का यही एक सबसे ऑप्टिमम ये होगा कि आप जितने भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यूज कर रहे हैं उन सबकी कॉस्टिंग कम होनी चाहिए। मतलब आपका लेबर भी कम कॉस्ट का होना चाहिए, आपकी टेक्नोलॉजी की भी कॉस्ट कम होनी चाहिए, आपका लैंड का भी कॉस्ट कम होना चाहिए, और आपको बेस्ट एंटरप्रेन्योर्स भी कम कॉस्ट पे मिले। जब ये सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के कॉस्ट जब कम होंगे तो वहां पर क्या होगा कि आप अपनी प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करेंगे। तो क्या होगा कि PA अपॉन MPA, PB अपॉन MPB will be equal to the marginal cost of the X is equal to marginal revenue of the X. Fine. और MPA upon PA is equal to MPB upon PB will be 1 upon the marginal cost of X is equal to 1 upon the marginal revenue of the X. Fine. Now, where marginal MP is marginal product, P is the price, MC is the marginal cost and the marginal revenue. Now this condition tells how much of the each factor A and B a firm should employ in order to maximize total profit. ठीक है, तो अभी जो भी स्टूडेंट्स के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, आप इसको यहाँ तक अपनी रिवीजन करें। आपके पास, आपको मैंने कहा था कि आप बुक्स परचेज कर लें, आपके पास बुक्स अवेलेबल होगा, नहीं तो बुक के शॉप खुल चुके हैं, लॉकडाउन ओपन हो चुका है बुक्स की शॉप्स के लिए। ऑनलाइन भी आप मंगा सकते हैं या डिजिटल फॉर्मेट में भी आप परचेज कर सकते हैं। फाइन, बाय योर बुक्स। फाइन, इसको आप रिवाइज करें यहाँ तक, और इसका जो फिर आगे का जो पोर्शन है, डिमांड कर्व वगैरह का जो डेरिवेशंस है, ये जो है दैट विल सी इन द नेक्स्ट क्लास, इन द नेक्स्ट वीडियो। फाइन, थैंक यू वेरी मच।